Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking this for class 10th your first chapter, cell cycle, cell division and structure of chromosomes. Same I am following with your candid ICSE biology for class 10. Right? Now here you see, as you say, you have the cell cycle and cell division, main features, main stages, interphase, that G1, SN, S2 phase. Now as you know already, the most significant manifestation of life is reproduction, which may be at organism सेलुलर और मोलिकुलर, मतलब जो भी रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, सेलुलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल. सेल डिवीजन इज द मेथड दैट एनेबल्स लाइफ टू परपेचुएट मीन्स टू ग्रो जनरेशन आफ्टर जनरेशन. It is equally true in case of simplest organisms like amoeba and highly complex ones as human animals or plant. Cell division produces new cells from pre-existing ones in order to help in growth, replacement, repair, and reproduction in all living organisms. During cell division, a cell divides into two daughter cells, mitosis, और 4 डॉटर सेल्स मियोसिस. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस में चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं इसलिए 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. एंड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज रिजेंबल with the parent cell. These characters are transmitted from parent cell to the daughter cells in the form of genes which are located on chromosome. The chromosomes, the hereditary materials, are present in the nucleus of the cell. And these chromosomes, they are able to carry characters because of the fact that they duplicate before the beginning of the cell division. Chromosomes contain DNA, as you know already. So during the cell cycle, what happens? Every cell capable of division faces through recurring events, again that is called the cell cycle. The sequence of events including duplication of DNA, synthesis of other cell constituents, growth and division, cell undergoes from the time of its formation up to its division into the daughter cells is called cell cycle. Duration of cell cycle, duration between two successive cell divisions is called generation time. जब सेल डिवाइड होता है एक सेल से दूसरे सेल में और जब दोबारा वो डिवीजन के लिए तैयार होता है तो वो जो फेस है वो इंटरफेस यानी कि 2 सेल डिविजन्स के बीच की जो फेस होती है. और सेल साइकिल यानी कि इवेंट्स डुप्लीकेट करता है, ग्रो करता है और उसके बाद उसके फॉर्मेशन होकर के फिर से डिवीजन के लिए तैयार होता है. ये पूरी फेसेस जो होते हैं वो सेल साइकिल का है. सेल साइकिल इंटरफेस, नॉन डिवाइडिंग फेस, माइटोटिक फेस, डिवाइडिंग फेस. इंटरफेस ही सबसे ज्यादा लंबी होती. फर्स्ट G1 फेस जिसमें इनिशियल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस होता है. एस सिंथेसिस फेस ऑफ द डीएनए सिंथेसिस फेस अप टू द 8 आवर्स, ये अप टू 10 आवर्स सकती. फिर सेकेंड ग्रोथ फेस पोस्ट डीएनए सिंथेसिस जो सेकेंड ग्रोथ फेज होती है. उसके बाद एम फेज दैट इज द माइटोटिक फेज जो 1 घंटे के होते हैं. सिर्फ 1 घंटे में कैरियोकाइनेसिस होती है जिसमें कि न्यूक्लियस 1 से 2 में डुप्लीकेट होता है. अब देखिए फर्स्ट पहले हमारा आता है इंटरफेस. इट इज द नॉन डिवाइडिंग प्रिपरेटरी फेज ड्यूरिंग विच ए सेल प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड ग्रोज टू द सेम साइज एज देयर मदर सेल. The chromatin reticulum, also called chromatin network, duplicates due to the duplication of DNA content further divided into 3 substages, G1 phase, S phase. यानी कि इंटरफेज जो नॉन डिवाइडिंग फेज होती है जो जिसमें के लिए सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है. इसमें जो है क्रोमेटिक मटेरियल बिल्कुल जैसा वो होता है उसी की तरह से तुरंत डुप्लीकेट उसकी कॉपी तैयार होती है और उस कॉपी को तैयार होने में 3 फेसेस लगती हैं जिसे हम कहते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज. तो इसमें फर्स्ट जैसे ये सेंट्रीओल है, ये साइटोप्लाज्म आपके क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस में है, ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है, इसके ग्रोथ होता है. तो फर्स्ट G1 फेज मीन्स फर्स्ट ग्रोथ फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज. G1 लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेस, सबसे लंबी फेज होती है जो 10 घंटे की होती है, 10 आवर्स. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव
RNA and proteins are synthesized, volume of cytoplasm increases, so cell grows in size, cell carries out normal function and gets prepared for the next phase. So there is no change in DNA content of the cell during this phase. Synthesis, here synthesis of the DNA takes place and chromosomes get duplicated. यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स, यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स ग्रो करते हैं, मोटे होते हैं, और मोटे के बाद जब ग्रो सिंथेसिस डुप्लीकेट, जब उसमें रिप्लिकेशन होता है, जब मोटा हो जाता है तो वो डिवाइड होगा, जब डिवाइड होता है तो डीएनए का सिंथेसिस फेज आता है, डुप्लीकेट। अब G2 फेज में, सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या होता है, सेकेंड ग्रोथ फेज प्री माइटोटिक शॉर्टर ग्रोथ फेज इन विच सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप, जो कि सीने का जितना डेवलप होता है, डेवलप हो गया, बंद हो गया। देन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और प्रोटीन्स का होता है, नेक्स्ट जो कि सेल डिवीजन के लिए जो होते हैं, दैट एंड इट प्रिपेयर्स द सेल टू द undergoes mitotic phase and the next division, and thus the cell cycle goes on. Mitotic phase, it is the dividing phase of the cell. During the phase, nucleus as well as the cytoplasm divides into two daughter cells. जो mitotic phase होता है इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दोनों दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड आफ्टर टेलोफेज the 2 new cells again they carry on the same with the cell cycle, and this process going on. So cell cycle cannot go on endlessly. At some places it stops permanently, like जैसे brain है, nerve cells है. Once formed in the embryo do not divide further. Once dead they are not replaced. At some places it stops temporarily, like the liver cells divide only once every 1 or 2 years to replace damaged cell. एट द अदर हैंड बॉडी पार्ट्स में उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेल डिवीजन होता है। लीवर सेल्स जो 1-2 साल में डिवाइड होते हैं, जो कि ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करते हैं, डिवाइड ओनली वंस टू रिप्लेस द डैमेज सेल। अदर प्लेसेस सेल डिवाइड स्टिल जब तक इट इज नीडेड, जब तक कि उनको जरूरत है। जैसे एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट लास्ट ओनली 5 days एंड दैट द स्किन एपिडर्मल सेल्स अबाउट 15। जैसे हम हमारे बॉडी की जो अपर स्किन लेयर, जो ये स्किन लेयर, हर 1 महीने में हमारी अपर लेयर रिमूव होती है और नीचे से डबल लेयर वो बनती है। जैसे मैमल्स में होती है जो सरफेस स्किन, दे आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय द अंडरलाइन सेल। मैमल्स में हमेशा डिवाइड होती है। इनसाइड चीक सेल्स जो डिवाइड अबाउट वंस 24 आवर्स, वो 24 घंटे में जल होती है। नर्व सेल्स इन द ब्रेन सेल्स ऑफ द आई लेंस, मसल सेल्स, they last for a lifetime but once dead are never replaced. जो ब्रेन सेल्स होते हैं, आई लेंस के सेल्स होते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ये एक बार अगर डेड हो जाते हैं तो दोबारा रिप्लेस नहीं होते। आरबीसीज हैं तो इनका 120 days लाइफ स्पान होता है। प्लांट सेल्स में जैसे ग्रोइंग पार्ट्स हैं, ये रैपिडली ग्रोस एंड डिवाइस न्यू बर्ड्स एंड फ्लावर्स। एंड अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल मे लेड टू ट्यूमर्स एंड मे बी कैंसरस, जो अनसाइंटिफिक। तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड देयर ग्रोथ इन आवर बॉडी, इन चिल्ड्रन न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस मोर देन द सेल्स दे डाई, हैंस दे ग्रो। बच्चों में सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जितने कि मरते हैं उससे ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तभी उनमें ग्रोथ होती है। एडल्ट्स में न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेल्स दे डाई, जब पॉपुलेशन स्टेज कांस्टेंट। ओल्डर पीपल, जब जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, ओल्डर होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड दे आर प्रोड्यूस्ड but they do not grow at the same time. They produce, but the number of the chromosomes in this division. So in a time, the number of cells produced, they are less than they are produced as we grew older. Mitosis, it is a type of a cell division where cell divides into 2 daughter cells and each contains similar and the same number of chromosomes as present in the parent cell. So the number of chromosomes in the division, it remains the same, so it is known as equational cell division. So this type of division takes in somatic cells of the body, growth, development and repair of the body cells tissues. So they are somatic cell division. And mitosis, they were first described by Strasburger in 1875 in plant cell, by Walter and Fleming in 1879 in animal cell, and is named as mitosis in 1862. As we know, cells prepare itself
फॉर माइटोसिस ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस में सेल्स अपने को डिवीजन के लिए तैयार करता है। सो 3 इंपॉर्टेंट सेल ग्रोज ऑन द सेम साइज एज देयर मदर सेल, अपने जैसे मदर सेल के बराबर ग्रो करता है। RNA एंड प्रोटीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस and DNA synthesis takes place and chromosomes get duplicated. During interphase, chromosomes, they have the minimum degree of condensation or coiling but cannot be distinguished individually. जो कॉइलिंग और कंडेंसेशन ज़्यादा होता है लेकिन वो बिल्कुल भी उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. सो एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, न्यूक्लियस एज वेल एज द न्यूक्लियोलस, so cell is quite very active metabolically. So DNA synthesis occurs, so no alternative is left for the cell except to divide. जब वॉल्यूम कम होगा तो कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता है कि उसको फिर डिवाइड होना ही पड़ेगा. तो जब वो एंटरिंग द माइटोटिक फेज, एंड ऑफ द इंटरफेज, सीरीज चेंजेस स्टार्ट इन द फिजिकल एंड केमिकल ऑर्गेनाइजेशन. जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे क्रोमोसोम फॉर्म होता है. सो द माइटोसिस फॉलोड बाई 2 प्रोसेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. Karyokinesis, all the changes in the nucleus occur during the cell division. They are known as cell. So division of the nucleus called karyokinesis and division of the cell is known as cytokinesis. During karyokinesis, many events takes place in a particular sequence and all these events are studied: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase, pro means fast. It begins shortening and thickening of chromosome. Main thing, shortening and thickening of chromosomes occur. Chromosomes are clearly visible inside the nucleus and chromosomes splits longitudinally to form 2 chromatids. Shortening or thickening होती है. Chromosomes, they are clearly visible. They splits longitudinally to form 2 chromatids and 2 sister chromatids remain attached in the center by a centromere. दूसरा, centriole in the centrosome of the animal cell and division into 2, but in case of the plant cell, the surrounds the centriole disappears from the centrosome, setting the centriole. Centrioles develop very fine eyelashes like thread-like astral rays. Centriole with astral rays, they are called asters. 2 asters moving towards the opposite pole. 2 sister asters develop very fine proteinaceous thread-like structures known as spindle fibers. Asters along with spindle fibers, they are called spindle apparatus, mitotic apparatus, amphistindle spindle in plant. So chromosomes get attached with the spindle fibers, the centromeres, and the nuclear membrane nucleus start disappearing in the middle of the prophase. Totally they disappear by the end. अब ये देखिए, सबसे पहले आपने कहा ये एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन हो जाती हैं जो कि जजस में गिरती है. न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाते हैं, 4 सिस्टर क्रोमोटेट्स में होते हैं और ये अंदर साइड ये सेंट्रोमियर से अब डस्ट होते हैं. अब इसके बाद जब ये प्रोफेस में आता है, ये दूसरे मिडिल प्रोफेस में दे अपीयर मोर प्रोमिनेंट क्रोमोसोम्स, दे अपीयर प्रोमिनेंट सिंगल लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर. लेट प्रोफेस में ये टोटली सेंटर दोनों अपोजिट साइड्स में आ जाते हैं. स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटल डिसअपियर होती है. न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर, ये न्यूक्लियोलस के अंदर तो ये चेंजेस हो ही रहे होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और ये सेंट्रोमियर के जरिए ये एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स अटैच्ड हो जाते हैं लेट प्रोफेस में. मेटाफेस में क्या होता है? मेटाफेस में क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड देम ऑल इन द सेंटर. मेटाफेस प्लेट में ये सेंट्रली अरेंज्ड हो जाते हैं. मेटाफेस के बाद जब अर्ली एनाफेस में क्या होते हैं, जब मेटाफेस के एंड में अर्ली एनाफेस है, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है. ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और दोनों ये जो 4 क्रोमोटेड हैं ये 2 क्रोमोटेड में डिवाइड होकर के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं. लेट एनाफेस में ये अपोजिट पोल्स के काफ़ी पास आ जाते हैं. You can see they are moving towards the opposite. एनाफेस में और फिर टीलोफेस फेस पर आते आते ये स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रीअपेयर होती है और ये क्रोमोसोम एडजस्ट होते हैं. और उसके बाद जब आता है नेक्स्ट लेट टीलोफेस के बाद में ये सेंट्रल क्रोमोसोम, ये सेल डिवाइड हो जाता है. सेल प्लेट फॉर्मेशन, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है. और ये देखिए न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड क्रोमोसोम्स बिकम्स मोर कोवेलेंट थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स.
और उसके बाद लेट उसमें ये 2 डॉटर सेल, फिर इस डॉटर सेल फिर से वही इंटरफेस के पोजीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए मेटाफेज में क्रोमोसोम्स बिगन टू शो पेक्यूलियर मूवमेंट, अरेंज देमसेल्फ बिटवीन द पोल्स ऑन द इक्वेटर। ये इक्वेटर पर अरेंज, ये देखिए ये इक्वेटर पर अरेंज है, ये इक्वेटर है सेंट्रल पोजीशन, इस इक्वेटर पर ये सारे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में एना मीन्स बैक, मेटा मीन्स आफ्टर, मतलब क्रोमोसोम splits into 2 daughter centromeres, each remaining one of the 2 chromatids, and the structure formed so known as sister chromatids or daughter chromosome। ये देखिए ये sister chromatids या daughter chromosomes होते हैं, ये इनको हम कहते हैं daughter chromosomes, ये हैं daughter chromosomes। By the end of the anaphase, each pair sister chromatids on one reach at the one pole and the second reach at the another pole. And telophase, each sister chromatid daughter chromosome which reach at the opposite pole starts uncoiling, thinning and elongating, and they form a network-like structure called chromatin reticulum। ये देखिए chromatin reticulum का formation start हो गया। Around each chromatin reticulum, the 2 poles reappears, nuclear membrane gives rise to 2 daughter nuclei, nucleoli reappear in each daughter cell, spindle fiber astral rays, जो spindle fiber astral rays ये देखिए disappear हो जाते हैं और later cytoplasm content divide होकर 2 सेल, and the centrioles duplicate, they are surrounded by centrosphere, again producing the centrosome near each daughter cell। The process of case followed by cytokine, मतलब जब सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर के 2 सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिए ये जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसके बाद ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, इसके बाद ये दोनों से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी डिवाइड हो गए और ये एक सेल से 2 सेल। अब फिर ये वही प्रीवियस स्टेज पर आ जाते हैं, ईच सेल फॉलोड बाय द सेम प्रोसेस। बाय साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, जबकि एनी सेल में अपीयरेंस ए फरो इन द साइटोप्लाज्म। इन प्लांट सेल vesicles from Golgi body appears, equator of the symbol, it forms the cell plate, divide the cytosol 2 equal halves, one around each daughter nucleus, then the primary cell। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, जैसे आप ये देखिए, यह आपका इंटरफेस हुआ, यह आपका अर्ली प्रोफेस हुआ, ये लेट प्रोफेस हुआ, ये मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए सेंटर में अरेंज है, सेंटर में एनाफेज में दे स्टार्ट स्प्लिटिंग, उसमें ये पूरे स्केल पर आ गए, जब ये पोल पर आ गए ये अपने पोल पर रैम्बल हो गए, ये हुआ। इस पेज में आने में क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें सेल फरो फॉर्मेशन होता है। तो ये साइटोकाइनेसिस में दोनों सेल डिवाइड होकर के सेल प्लेट फॉर्मेशन और ये डॉटर सेल्स, एंड देन दे स्टार्ट सेपरेटिंग अगेन एज इट द सेम सेल। So plant cell vesicles, Golgi body appear at the equator spindle. So it forms a cell plate, divides cytoplasm into 2 equal half cytoplasm, one around each daughter nucleus. Then primarily cell wall is laid on either side of the cell plate. In animal cell, excuse me, a constriction appears parallel to the equator of the spindle in the cell membrane. It deepens toward the center of the cell, finally dividing the cytoplasm in 2 halves. One half of the cytoplasm is around one daughter nucleus and the other around the second daughter nucleus. It completes the formation of 2 daughter cells. They contain exactly similar and the same number of chromosomes as present in the parent cell. सी प्रोफेस में मेन पॉइंट्स देखिए क्या होते हैं, ईच क्रोमोसोम विद 2 क्रोमोसोम, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल। और मेटाफेस में क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट, एनाफेस स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम्स इनटू 2 डॉटर क्रोमोसोम्स, मूवमेंट ऑफ daughter chromosomes towards opposite pole, telophase, uncoiling of chromosomes, disappearance of spindle, reappearance of nucleolus and nuclear membrane। Significance क्या है? Mitosis is a manifold significance, maintenance of chromosome number, genetic stability, maintains the same number of chromosome and the daughter cells, maintenance of cell size को maintain करता है, when the cell is fully grown up, divides by mitosis during 2 similar growth। Every multicellular organisms, alga, worm, mango tree or human being starts its life as a single cell, the zygote, to produce millions or trillions of cells as in the whale or elephant. This cell undergoes repeated mitotic division. It increases body size due to the formation of new cells in the tissue. Replacement.
Every minute, about 3 billion cells die in our body, and the same number of new cells are produced by cell division in the same period to replace dead cells for survival. Apart from the normal wear and tear of the tissues in our body, there may be accidental injuries. These injuries, such as fractures, cuts in the skin, surgical operation, they healed up due to addition of new cells by the division of adjoining cells of the injury. Asexual reproduction. In unicellular organisms like amoeba or yeast, young ones are produced by the division of the cell that constitutes their body. Regeneration. The lost parts, may be organs or tissues in certain organisms, are reformed by the division of cell. The tail broken by a wall lizard in self-defense is reformed within few days by the division of the cell from where the tail is broken. Embryonic development. Living organ. Process of the development of the embryo takes place by mitosis. So, animal cell, nuclear chromosomes even during millions during mitosis are shown in both animals as well as in the plant. See the difference between animal cell and the plant cell. Because of the presence of centriole, centrosome, 2 esters are formed. Centrosome is absent, so no esters are formed. Cytokinosis takes place by the constriction furrow in the cytoplasm. In plant cells, cytokinosis takes place by the formation of cell plate. Cytokinosis proceeds from outside towards the center in animal cell. Here cytokinosis proceeds from center towards periphery. यहाँ पर जो है बाहर से अंदर की तरफ जाता है, यहाँ अंदर से बाहर की तरफ होता है. Spindle fibers are formed between 2 esters, daughter centriole. Here spindle fibers develop from cytoplasmic strands called microtubule. Spindle formed is amphiestral. Here spindle formed is anestral. Now we proceed with the meiosis. The term meiosis was coined by the Farmer and Murray in 1904. It is a special type of cell division that produces sex cells or gametes. ये special cells होते हैं जो कि sex cells और gametes को produce करते हैं. It takes place in the reproductive organ, that is testis and ovary, in humans to produce sperms and ova. In flowering plants, it takes place in the anthers and the ovary to produce pollen grains and ovules respectively. Meiosis is a type of cell division in which a cell undergoes 2 successive divisions producing 4 daughter cells, each containing half the number of chromosomes as compared to the parent cell. Meiosis is a type of cell division in which a cell undergoes 2 successive divisions producing 4 daughter cells, each containing half the number of chromosomes as compared to the parent cell. Since the number of chromosomes in this type of division is reduced to half in daughter cells, so it's also called reductional cell division, right? For example, out of 23 pairs of chromosomes, only one member of each pair is passed on to one sex cell. This is essential because during fusion of male and female gametes, the normal diploid number of chromosomes is required, and the diploid number as a rule is expressed as 2n, 2x number of chromosomes, haploid, single n, x number of chromosomes. देखिए meiosis always takes place in meiosis हमेशा diploid cells में होता है. Diploid cells is one in the nucleus in which the chromosomes are present in the form of pair. Nucleus जहाँ की chromosomes pairs में होता है, and each type of chromosomes are 2 in number. One is maternal and another is paternal. जिसमें एक maternal होता है और एक paternal होता है. देखिए meiosis फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन. ये वैसे ही जैसे पूरा माइटोसिस होता है. पहला होता है रिडक्शन. रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है? ड्यूरिंग meiosis फर्स्ट meiotic division, the diploid cell, it divides into 2 haploid cells. Daughter cells, it is reductional division because number of chromosomes reduced to half than of the daughter cell. So always takes place in those cells in which chromosomes are present in the form of pairs or homologous. देखिए जैसे ये diploid cell है,
फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन। जब रिडक्शन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो दोनों में हैप्लॉइड सेल n नंबर हुए। अब इन n नंबर में इसमें माइटोसिस होकर के 2 सेल्स बनेंगे, लेकिन जो सेकंड इक्वेशनल डिवीजन होगा उसमें सारे हैप्लॉइड सेल्स होंगे, यानी कि 4 cells are formed, only 1 ready to mature over the X in case of the female, but in the sperms all led to the formation of goes on mitotic division and forming more and more sperms. होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? द क्रोमोसोम्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड बियर द सेम जीन्स एट सेम लोकाई आर कॉल्ड होमोलोगस। जो एक ही तरह के क्रोमोसोम, ईच पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, वन इज शेयर्ड बाय द मेल पैटर्नल क्रोमोसोम्स एंड द अदर इज शेयर्ड बाय द फीमेल दैट इज मैटरनल। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर, तो जो इसमें इक्वेशनल डिवीजन, सेकंड डिवीजन इज द इक्वेशनल डिवीजन होता है, डिवीजन बिकॉज इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव्ड बाय द डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट। सो जो कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसको वही प्रोसीड करता है हाफ नंबर। तो एंड द मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल्स इन विच ईच डॉटर सेल्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। जैसे ये देखिए, ये पेरेंट सेल डिप्लॉइड सेल है, इसमें हमारा फर्स्ट ये माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हाफ हुए। अब इफ हाफ में माइटोटिक डिवीजन जो कि 4 सेल्स हमारे फॉर्म, इससे 2 सेल मिले, इससे 2 सेल बने और इन दोनों को मिलाकर हमारे 4 सेल्स बने और इन चारों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब सिग्निफिकेंस, रिप्रोडक्शन, मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है इन एनिमल्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एंथर्स टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, ओव्यूल्स टू प्रोड्यूस एग्स। प्लांट्स में एंथर्स में होता है पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए और ओव्यूल बनाने के लिए, एग्स बनाने के लिए होता है। अब मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर जो होता है, द गैमेट्स क्रोमोसोम नंबर इज हाफ सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन नॉर्मल हैप्लॉइड नंबर इज स्टोर्ड। वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जैसे कि वेरिएशंस, एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब नए तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए जो कि एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मियोसिस एंड दीज वेरिएशंस आर द कॉज ऑफ एवोल्यूशन, और ये वेरिएशन जो होती है एवोल्यूशन का कारण बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इसमें मियोसिस में। सी हियर in which maternal and paternal chromatids of the homologous chromosome during first reductional division linked together to form chiasma formation। ये होता है chiasma, जब ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स इसका पेरेंट का दोनों में क्रॉसिंग, इससे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिससे कि नई स्पीसीज का प्रोड्यूशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इन्यूमरेबल वेरिएशंस इन, मतलब बहुत तरह के वेरिएशंस हमारे से क्रिएट हो सकते हैं प्रोजनी में, टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट सिमिलर आर डिफरेंट टू ईच अदर। जैसे इसमें है, ये देखिए इसका एक पार्ट कट के इसमें गिरा, तब इसमें ये, तो इस तरह से ये पार्ट ये कहीं भी होगा, हो सकता है इसके बीच का पार्ट कट के इसके बीच के पार्ट में, इसका एक सिरा कट के इसमें आकर के एक्सचेंज हो जाए, या इधर से एक एक्सचेंज इधर एक्सचेंज, कहीं भी एक्सचेंज हो सकता है और इसी से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंट देखिए, इट अकर्स सोमैटिक सेल्स, इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स 2 डॉटर सेल्स होते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। इट इज कंप्लीटेड इन 1 डिवीजन, इट इज कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव डिविजन्स में होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ग्रोथ, रिपेयर, रिजनरेशन, डेवलपमेंट। ये कब होता है माइटोसिस? ग्रोथ में होता है, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, रिजनरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। It takes place only in the formation of gametes or sex cell by the process of gametogenesis. Here, full set of chromosomes are on each cell. Here, only half the number of chromosomes is passed on each daughter cell. They occur continuously throughout the life, हमेशा होता है. It occurs only in reproductive stage. ये सिर्फ reproductive stage में ही होता है. अच्छा, अब आते हैं क्रोमोसोम. They are highly condensed coiled chromatin fiber. Chrome means colored, soma means body. So they are small but thick rod-like darkly stained structure. They pick up certain dyes and get colored, hence name chromosome.
They are seen in nuclei of dividing cells only at metaphase and anaphase stage of cell, जो कि सिर्फ मेटाफेज और एनाफेज स्टेज के सेल में ही दिखलाई पड़ते हैं. Whereas in non-dividing cells, they are seen as a network of thread-like structures called chromatin reticulum. Chromosomes were first discovered by Hofmeister in 1848. He noticed them rapidly during the divide Tradescantia plant that is called nuclear filaments. Waldeyer ने 1888 में इसमें क्रोमोसोम नाम दिया था. न्यूक्लियर फिलामेंट्स में क्रोमोसोम were first studied by German scientist Walter Fleming. Rapidly dividing cells larva of an amphibian called salamander. एम्फीबियन क्लास एम्फीबिया सैलमेंडर जो है एग्जाम्पल एम्फीबिया का ही है. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन द cells of each species. Depending upon the number of chromosomes, the cells are said to be haploid or diploid. A cell is said to be haploid when all types of chromosomes found in it are present in a single set. Similarly, इसी तरह से organism is said to be haploid when the body cells are haploid. On the other hand, diploid two-end cells contain two sets, all types of chromosomes found in it, or we can say that chromosomes are present in pair. Two chromosomes of one pair are exactly similar in shape, size, structure, and bears genes that controlling the same characters on the location point. Such chromosomes are called homologous chromosomes, जिसमें सेम शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है. उसी होमो मीन्स सिमिलर. Out of each of homologous chromosomes, one is shared by the female parent, maternal, and the other is shared by the male parent, that is the paternal chromosome. So the diploid number of chromosomes of the species, they are 2 in one pair, as you see. Ascaris में 2 in one pair. ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, 4 पेयर्स. फ्रॉग में 26. इसीलिए हर एनिमल्स में अलग अलग. यू कैन क्लिक द पिक्चर एंड यू कैन गो थ्रू इट दैट हाउ मेनी विच ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो द डिप्लॉयड नंबर ऑन स्क्रीनिंग द टेबल यू कैन क्लियर दैट डिप्लॉयड नंबर इज ऑलवेज इवन. जो डिप्लॉयड नंबर होता है हमेशा इवन, क्योंकि पेयर्स इवन में ही होते हैं. Chromosomes are always paired. It is very clear that the characteristics of an individual do not depend upon the number of chromosomes. जैसे fowl, dog, totally different, but the number of chromosomes is same in both of them. But the complexity of the individual is also free of the number. मतलब हर chromosomes में अलग अलग तरह के genes होते हैं, वो अलग अलग तरह के characters को represent करते हैं. Protozoan most simple creature, but they possess numerous chromosomes. Characters and complexity मतलब character और organelle कितना complex है. It depends upon the types of genes present. Now, structure of chromosomes. Chromosomes are highly condensed chromatin fibers formed at the prophase stage of cell division. The structure of chromosomes is the best studied either during metaphase or anaphase of the cell. जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको तो मेटाफेज या एनाफेज स्टेज पर ही हम अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में देख के स्टडी कर पाते हैं. ड्यूरिंग मेटाफेज each chromosome consists of two exactly similar rod-like chromatids, and the two chromatids are joined together at a point called centromere. दो chromosomes joined होते हैं centromere पे, जैसे ये chromatid, ये joint हैं centromere पे. Parts of chromatids on the two sides of centromere, they are called arms. इनको हम arms कहते हैं. In each chromatid is present highly coiled thread of DNA and proteins called chromonema. जो क्रोमोनिमा जो होता है, ये जो डेंस प्रोटीन आप देख रहे हैं, ये जो आसपास है, ये क्रोमोनिमा है, और ये जो लाइट कलर्ड है, ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये सेंट्रोमियर है. The chronomere bears darkly stained granules called chromomeres, and chronomere is surrounded by a matrix which is covered by a covering called pellicle. ये जो आउटर कवरिंग है उसको हम पेलिकल, ये जो आउटर कवरिंग जो दिखाई दे रही, ये इसको हम पेलिकल बोलते हैं. जैसे ये क्रोमोसोम्स है, तो जो आउटर कवरिंग है पेलिकल है. ये जो डार्क स्टेन, ये जो मटेरियल ये पड़ा है क्रोमिंदा है, क्रोमोनीमेटा है, क्रोमोनीमा जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनीमेटा, और ये अंदर थ्रेड लाइक है, ये क्रोमोसोम्स है, और ये दो क्रोमोसोम्स ज्वाइंट हैं इस सेंट्रोमियर से. ठीक है.
ये जो है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसमें कि ये सारे एम्बेडेड होते हैं। कवर्ड बाय ए कवरिंग पेलिकल, ये पेलिकल है, ये जो आउटर डार्क कलर है ये पेलिकल है, ये क्रोमोनीमा है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोनीमेटा है, ये कॉन्स्ट्रक्शन सैटेलाइट बॉडी है, ये आर्म्स क्रोमोटेट्स हैं, इसमें आर्म्स ये कंबाइंड है, ठीक है। सम क्रोमोसोम्स पजेस ए स्मॉल फ्रेगमेंट और नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैटेलाइट। ये देखिए कुछ क्रोमोसोम्स में नॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड में प्रेजेंट होती है जिसे कि हम सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। Such chromosomes are known as SAT chromosome. Terminal regions on either side of the chromosomes are known as telomeres. जो साइड में होता है ये जो जैसे स्लाइडोम लाइक है, इसको हम टीलोमेयर कहते हैं। क्रोमेटिन, the chromatin materials that constitute the fiber is formed of two substances, 40% DNA and 60% histones, a particular type of protein. इसमें 40% DNA होता है और 60% histones प्रोटीन होते हैं। histones प्रोटीन्स में ये अम्बेड है। histones and DNA form a kind of complex in which DNA strands wind यानी twisted होती हैं round each core of 8 histone molecule. Such complex is called nucleosome. यानी कि प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एंड एंटायर क्रोमेटिन फाइबर इज कॉइल्ड इन द सुपरकॉइल. सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में बी अबाउट 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम. जैसे न्यूक्लिक एसिड अभी हम आपको बता रहे हैं आगे. केमिस्ट एंड से क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA and RNA. They were first discovered by Friedrich Meiker. Nucleic acids have been complex chemical structures composed of pentose sugar, nitrogenous bases and phosphoric acid. अब ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें अब देखिए द शेप ऑफ DNA मॉलिक्यूल स्टडीड बाय द रोजलिन फ्रैंकलिन इन 1953. DNA is very large single molecule macromolecule composed of 2 complementary coiled around a common axis. ये देखिए कॉमन एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं ये. एंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA molecule shown by the Watson and Crick. Each single strand is made up of a repeating nucleotides which have 3 components phosphate sugar bond. अब ये जो चेन बनी है ये बनी होती है फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स की. ये फॉस्फेट बॉन्ड शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट बॉन्ड शुगर, इसकी ये चेन बनी होती है. और इसके बीच में जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. अब इसमें जो ये प्रोटीन जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इस शुगर मॉलिक्यूल से जो होते हैं, इस शुगर मॉलिक्यूल से एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है. और ये अटैच्ड होते हैं शुगर बॉन्ड से दोनों साइड से. फिनोमेना फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड शुगर बॉन्ड. ये देखिए अभी ये आप देख रहे हैं पेंटोज शुगर. ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट. यानी कि ये हमारे लैडर हैं, जैसे सीढ़ी होती है दो, ये सीढ़ी के पावदान हैं और इन दोनों जिसके बीच में पैर रख के हम चढ़ते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस है. जैसे ये है, ये स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो ज्वाइंट होती हैं अलग अलग, ये ज्वाइंट होती है नाइट्रोजनस बेस से. ये अलग अलग है ये स्ट्रैंड, तो ये नाइट्रोजन बेस हाफ हाफ हो गई. ये नाइट्रोजनस बेस जो बनी होती है ये ज्वाइन होती है एडेनिन और थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से और ग्वाइनिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से. यही ऑल्टरनेट ज्वाइंट होकर के ये हमारे सीढ़ी पर रख के पैर रखने वाले, और ये ज्वाइंट होती हैं शुगर मॉलिक्यूल से साइड में, और ये शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड से. इस तरह से ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर पूरा बनता चला जाता है. Lengthwise, nitrogen base attached to the sugar inverts extend to join complementary nitrogen bases. Others stand by double hydrogen bond as adenine, thymine and triple hydrogen bond. ये जो bonds होते हैं hydrogen bonds होते हैं. ये guanine और cytosine. So 2 strands together gives an appearance as a spiral staircase. बताया ना सीढ़ी नुमा staircase with the nitrogen base forming the steps. Nitrogen base जो होते हैं वो steps form करते हैं. Spiral staircase and also compared to the rungs of ladder. जो रंग्स के लैडर जो होते हैं वो फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड्स होते हैं, पेंटोज शुगर. तो DNA मॉलिक्यूल्स में 4 शुगर्स होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन. और RNA होता है, RNA में साइटोसिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी सब सेम होते हैं. और डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. सो नाइट्रोजनस ग्वानिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइटोसिन, थायमिन इज एडेनाइन. तो क्लियरली शोज द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पेयर्स, दे आर शोन इट ओवर हियर.
तो डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में पेंटोज शुगर राइबोस, जैसे आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसर्न, इट इज ऑल्सो दिस कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जो आरएनए में सिंथेसिस प्रोटीन बॉडी में होता है। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है? ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल ईच डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट्स इन ऑर्डर टू गेट डिस्ट्रॉयड इक्वली इन टू डॉटर सेल, दूर से बाइफरकेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग इन दिस प्रोसेस रेप्लिकेशन डीएनए हेलिक्स ओपन्स एट वन एंड मेकिंग द टू स्ट्रैंड्स फ्री टू ईच न्यू स्ट्रैंड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस इन द सीक्वेंस फॉर द होल लेंथ मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स डुप्लीकेट होती हैं और डुप्लीकेट होने के बाद फिर ये अपना अपना पेयर बना लेते हैं, ये सिंथेसिस होता है रेप्लिकेशन डीएनए में। और फिर ये देखिए अपने आप, जैसे ये पेयर है, ये पेयर बना, तो ये पेयर जब ग्रोथ करता है तो क्या होता है, ये स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, ये स्ट्रैंड अलग हो गए। अलग होने के बाद ये स्ट्रैंड्स अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल खुद बना लेते हैं और बनने के बाद फिर ये डबल होते हैं, फिर ये डबल होके फिर सेपरेट। तो जो ये सेपरेशन और रिलेशन जो कंटिन्यूड होता है, यही ग्रोथ रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो जीन्स क्या हैं? दे आर द स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब जैसे ये जो डीएनए है, ये आपका ये जो स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के पार्ट्स होते हैं, ये जीन्स होते हैं। जीन्स दे कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. They are responsible for the transmission of characters from one generation to another. They are located in chromosomes and occupy a fixed position in the chromosome. हर पोजीशन में इनकी पोजीशन फिक्स होती है एंड दे आर अरेंज्ड इन ए सिंगल लीनियर ऑर्डर क्रोमोसोम. तो साइंटिस्ट दे हैव आइडेंटिफाइड 30,000 जीन्स इन द ह्यूमन क्रोमोसोम. और यही क्रोमोसोम्स एक, जैसे हम जो बहुत से कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से मिलते हैं, वो रेसेसिव और डोमिनेंट, जैसा कि मैंने आपको हेरिडिटी में पढ़ाया था. तो वो जीन्स खत्म नहीं होते हैं, ना ही वो इन्वॉल्व होते हैं किसी, वो एज इट इज रिमेन हिडन रहते हैं. और जब भी उनको डोमिनेंट होते हैं तो वो अपने करेक्टर को एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस. तो फंक्शंस क्या होते हैं मेन? Chromosomes forms only link between two generations. They control the synthesis of structural proteins which help in the cell division, cell repair and cell growth. Sex chromosome XX means female, XY male, determine the sex individual. Through the process of crossing over, chromosomes induce variation. Crossing over से क्रोमोसोम्स में जो है म्यूटेशंस होती हैं जिससे कि एवोल्यूशन में हेल्प करता है. क्रोमोसोम्स अंडरगो म्यूटेशन, दैट इज द सडन चेंजेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू देम. सडन चेंजेस म्यूटेशन, और सडन चेंजेस से एवोल्यूशन होता है. एंड दे कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म, और ये सेल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं. अब क्रोमोसोम्स कितने तरह के होते हैं? सो द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वरीज इन द डिफरेंट क्रोमोसोम. 2 arms of the chromatids may be equal, और 2 arms होती है इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम दे आर इन 4. मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर बीच में होता है. सब मेटा से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म. एक्रोसेंट्रिक, एक बहुत छोटा एक बहुत लंबा. टीलोसेंट्रिक मतलब एंड में होता है, पूरा एक तरफ होता है. Metacentric, centromere is present in the center and the 2 arms of the chromatids are equal. During anaphase, you can see the V shape. Submetacentric, centromere is slightly away from the center so that one arm is slightly larger than the other. Such chromosomes are L-shaped. Acrocentric, centromere is present near one end of the chromatid so that one arm is larger than the other. Such chromosomes look J-shaped, as you can see over here, J-shaped. Telocentric, centrosome is present at one end of the form so that it looks a rod shape. Sex chromosome, which determines sex, they are known as sex chromosome. In humans, XX chromosome, XY chromosome is present. All chromosomes other than sex chromosomes found in pairs, homologous and diploid cells. Human cells pair autosomes. They click a picture, have a diagram, practice over it. Here, click the picture. Important points of this.
click a picture, important definitions of this chapter. Exercise I have already shown in my next video. To solve the exercise, you can go through my another video. This is what all about this chapter. Any doubt, anywhere, you can ask me in the comment section. Don't forget to like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you. Again, we will meet in the next video.